हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 का एनालिसिस हम डिटेल में कवर अप करेंगे एंड टू द पॉइंट हम रहेंगे हमारे इस एनालिसिस में। क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, क्या क्या पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, ब्रीफली पहले मैं वो हाईलाइट करूँगी एंड देन वी विल कनेक्ट विद दी लाइक योर पेपर and we'll do the detailed analysis. I hope my appearance doesn't matter much because I became a new mommy few days back. So I hope it's not important to be visible for me. So we'll stick to the like pattern to the question and we'll discuss directly from the question paper. Okay. So how you will see the paper is after the taking the review from the students who already appeared in this exam. यूपीएससी ऑलवेज कम अप विथ सम सरप्राइजेस। हमने हमेशा देखा है कि यूपीएससी कुछ सरप्राइज लेके आता है, बट ये सरप्राइज इस बार कैसा था वो भी हम एनालाइज करेंगे। विल सी दैट सरप्राइज फ्रॉम द पेपर। ओके, वी विल सी द पेपर पैटर्न। even you are an existing aspirant or you are a new aspirant who just began your preparation, we will take care both the perspective and then we will see the individual topic, either they are within the syllabus or they are outside the syllabus, that is within the purview of news. Okay, then we will see how much the theory it is and how much the numerical, how they come up. Means either they are a twisted question or a direct question which you can even if you can recall, you forget to revise, you don't got the time to revise the syllabus, but you can just recall and just write the answer. So we will see the theory also, that either there are direct question or the twisted question in theory, and numerical also we will see the different perspective of the numerical which is asked in UPSC. Okay, after looking into the picture of theory versus numerical, we will see the importance of subject. Like we have paper 1, we are going to discuss paper 1. Hope you know that it is divided into two sections, section A and B. With the section A includes your cost, audit, accounts and taxation. These are the four subjects, and the part B includes your FM and FI. Okay, so we will also see the importance of subject to the examiner, and I'll help you to know how you will analyze the importance of subject for your individual self. This will help you to analyze that if you have a weak areas like in taxation or a weak areas in FI, so how you can deal with this situation, and you can analyze that okay, this subject is much more important for me because this particular subject is my weak area. So I will try to help individual student can like analyze their self, so that you can decide that if you are doing a self study with the help of book, you can analyze yourself and you can do your preparation self sufficient. Okay, so हमारा कोशिश क्या रहेगा, I'll just try to conclude also, there are some student who are from हिंदी मीडियम, कि मैं ऐसा आपको एनालिसिस करा लूँ कि आप सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है उसे अब हम एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से तो देखेंगे ही, साथ में साथ हम ऐसे देखेंगे कि आपके इंडिविजुअल, आप जो भी स्टूडेंट हैं, आप ये एनालाइज कर सके कि भाई देखिए, अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन में आपने पीजीबी भी अच्छे से कवर अप नहीं किया, आपको नहीं अच्छा लगा, या एक कोई सब्जेक्ट ही आपका पसंदीदा नहीं है, तो उसको कैसे डील करना है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस पेपर के एनालिसिस से वो भी सपोर्ट मिले। ओके, सो हम इसको डिटेल में एनालिसिस को कवर अप करेंगे, आप इसे रेफर करें, अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस भी हमें शेयर करें, ठीक है, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। आई टुक योर अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द पेपर 1 of UPSC Commerce Optional 2023. So give me a moment, connect you with the screen and we'll start with the analysis. We come up on the platform and यहाँ से we will find our paper. Okay, so we can see in the subject column we can go to the UPSC Commerce Optional. हम UPSC Commerce Optional पे जाएंगे, then we can go with the UPSC Commerce Optional paper, question paper. So we can just jump to the question paper. We have from 2011 and these are sufficient, मतलब 2011 से these are good sufficient. तो 2021 का पेपर हमें देखना है, so we open up the paper 2021. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2021 का पेपर है आपके सामने। ठीक है, सो मैंने बोला था जैसे ही हम एग्जिस्टिंग एंड न्यू एस्पिरेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर अप करेंगे। ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इससे हमें ये भी आइडिया लगेगा कि क्या यूपीएससी कोई सरप्राइज तो नहीं लेकर के आ गया इस बार, हम उसे भी एक बार क्विकली देखते हुए चलेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 250 मार्क्स का आपका जो है पेपर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है आपका कंपलसरी है, जैसे आपका पहले पैटर्न था, आपको टोटल में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो आपके कंपलसरी हैं, इसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन चूज करने होंगे, ठीक है। 3 में से मिनिमम 1 क्वेश्चन ईच सेक्शन से होने चाहिए, यानी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और 1 क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से रिपीट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको हर बार देखनी है, आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता यूपीएससी कब आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ लेकर के आए। तो कुछ भी पुरानी चीज़ों को एक माइंड में जो है रूल ऑफ थंब बना के यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप नहीं बैठेंगे, ठीक है। सो रेस्ट आई एम जंपिंग, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा मैं ना लूँ। सेक्शन ए पे हम चलते हैं। सेक्शन ए में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑडिट है एंड कॉस्ट। ये 4 सब्जेक्ट हमारे सेक्शन ए में आते हैं। क्वेश्चन 1 था हमारा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी सब क्वेश्चन है, यानी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। हमारे जो 5 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 1 करना है, आपको आए चाहे नहीं आए ये काउंट माना जाएगा आपका। 50 मार्क्स का है। ABCD यानी 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का वेट रखते हैं, और आपको 150 शब्दों में यानी 150 वर्ड्स में यू हैव टू राइट इट। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनीज, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द रीजन एंड सोर्सेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। यानी हमने क्या देखा, ये जो हमारा अकाउंट्स का क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जो आपके 10 मार्क्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपसे मीनिंग ही पूछ ली कि बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब आप क्या समझते हैं, तो भाई आपने मीनिंग एक्सप्लेन करी। डोंट वरी, हम इसके आंसर्स को भी सेपरेटली कवर अप करेंगे हमारे फ्यूचर सेशंस में, ठीक है। इस बार मैं थ्योरी भी लेकर के आऊँगी, ताकि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा सा रोड मैप मिल सके, ठीक है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं आपने देख लिया। उसके बाद आपको रीज़न बताने हैं, उसे एक्सप्लेन करना है, और सोर्सेस, क्या क्या सोर्स से कंपनी बायबैक कर सकती है, ठीक है। सेक्शन जो 1A है वो कंपलसरी है, 10 मार्क्स का, 150 वर्ड्स का है। 1B में हम देख रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट का क्वेश्चन आ गया। तो पहला हमने अकाउंट्स का देखा, दूसरा हमारा कॉस्ट का है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिलेवेंट इन द इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया, कमेंट। तो क्या आपको लगता है इसमें आपको स्टैटिक नॉलेज की ज़रूरत है? नहीं, आपको मेनली क्रिएटिविटी यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, जो कि आएगी आपको आंसर राइटिंग से, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से, और डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे मोर एंड मोर रिलेवेंट है आपको आज के इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से, आपको उसे अपने एक अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, 150 वर्ड्स में। 1C हमारा, एक्सप्लेन द मेजर पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर वाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो डायरेक्ट आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्पेक्टिव में ऑडिटर को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ऑडिट करते वक्त, ये पूछा गया है, ठीक है। एक तरीके से अगर आपने द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक को देखा होगा, वहाँ पे ये पॉइंट्स को कवर अप किए हैं। अब ऑब्वियसली वो एक सिंगल बुक और बहुत सारे बच्चों ने खरीदी है, तो आप सारे लोग पढ़ के जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप 1 to 1 कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। आपको वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी आंसर राइटिंग की, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बुक में गिवन है आपको उसे इंक्लूड करना है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑडिट का क्वेश्चन है। तो 4 सब्जेक्ट थे हमारे सेक्शन ए में, जिसमें से 3 जो है सब्जेक्ट्स पहले ही तीनों क्वेश्चन में आगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1D देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर AS12। तो अब तक क्या था ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में ऐसे उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, डायरेक्ट पूछ लिया जाता था या प्रोविजन वाइज पूछा जाता था। अब इस बार क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है हमारे गवर्नमेंट ग्रांट AS12 में। तो आपको पता होना चाहिए AS12 किसे डील करता है। थोड़ा सा ब्रीफ 2 लाइन देना है, वो गवर्नमेंट ग्रांट से डील करता है। इंडेस के बारे में कुछ इन्फो है तो लिखिए, नहीं तो अगर नहीं है तो गलत मत लिख के आइएगा। उसके बाद ब्रीफली आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दे देने हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखा कॉस्ट का, एक देखा ऑडिट का। उसके बाद नेक्स्ट 1E देखते हैं। एंड एसएससी इज नॉट ओनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस, बट हिज लायबिलिटी में एक्सटेंड टू द सम अदर इनकम ऑल्सो, एक्सप्लेन।
अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कुछ अच्छा कुछ पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत इसको कैच कर लोगे कि भाई ये क्लबिंग ऑफ इनकम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर कोई नया एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या जिनकी अभी थोड़ी सी रिवीजन पे पकड़ नहीं है तो उनको ये सोचने में मुश्किल होगी। लेकिन आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चैप्टर आप में भी ना आइडेंटिफाई कर लो, इसलिए हम कवर अप करेंगे जब हमारा जो है सॉल्यूशन का फेस, वहाँ पे मैं आपको कैच करना भी सिखाऊंगी कि हमें कैसे कैच करना है। और ये भी देखेंगे कि अगर आपने वन टाइम कवरेज किया है सिलेबस को या 2 बार रिवीजन भी किया है तो आपको कैसे कोलिंग करना है। ठीक है, सो ये टैक्सेशन तो आपने देखा सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी पार्ट है, उसमें हमारे चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अकाउंट्स के 2, कॉस्ट का एक ऑडिट का है आपका और एक टैक्स का है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट तो आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट आपको सारे कवर अप करके जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A, आता है तो करेंगे बिकॉज ये ऑप्शनल है। मैं आपको आने वाले टाइम में ये भी सिखाऊंगी कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन जो सिलेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे भी कई बार आपकी जो है मिस्टेक्स कंडक्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके खुद के कुछ व्यू पॉइंट्स हो या अपनी क्वेरीज हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट हमें गिवन है ए बी लिमिटेड की, ठीक है, 31 मार्च 22 की। और हमें सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। द फिक्स्ड एसेट्स आर heavily overvalued. A scheme of reorganization was prepared and passed. The silent point of the scheme are as follows. तो हमारा ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हमने आपने सिलेबस में देखा होगा एमलमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है और ये हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एज्यूमिंग दैट द स्कीम इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टी इंटरेस्टेड एंड बाय द कोर्ट, ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर द स्कीम हैज बीन कैरीड इनटू इफेक्ट। तो इसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट मेन आंसर का पार्ट बनाना है और वर्किंग नोट पे कैसे काम करना है ताकि वहाँ पे भी आप मार्क्स को कलेक्ट कर सको। ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन के टाइम में डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स का फुल फ्लेज न्यूमेरिकल है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B, अगेन अ न्यूमेरिकल। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी था वो पूरा पूरा थ्योरी था और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने देखा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2B इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2B जो है आपका कॉस्ट का न्यूमेरिकल है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ न्यूली सेटअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट विल सोल्ड फॉर 150 पर यूनिट. The demand of the product is estimated at 10,000 units per year. The company has the choice of two machines, each of which has a capacity of producing 10,000 units per year. Machine A would have a fixed cost of 4 lakh per year and would yield a profit of 5 lakh per year on sale of 10,000 units. However, the machine B would have a fixed cost of 2,80,000 per year and would yield a profit of 3,20,000 per year on sale of 10,000 units. Variable cost have been linearly for both the machines. That means it is same for both the machine. कई बार कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं ना जो आप में से कुछ भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्लियर नहीं है, तुरंत जो हिंदी में कंटेंट है ना उसको रीड कर लो, अपना समय मत वेस्ट करना। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल एट विच द कॉस्ट ऑफ टू मशीन विल बी इनडिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर। ठीक है, सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे विल डिस्कस डिटेल। क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B दोनों न्यूमेरिकल रहा है। न्यूमेरिकल के साथ बेस्ट पार्ट क्या होता है, अगर आपने पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया तो फुल मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, 15 में से 15 मिलेंगे, लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। इसीलिए हम डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल के सेशंस लेकर के आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमने 70 to 100 न्यूमेरिकल कवर अप कर लिए प्लेटफॉर्म पे एंड विद टाइम अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2C, थ्योरी का क्वेश्चन है इनकम टैक्स का। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन हमारा 2A का अकाउंट्स का था, दूसरा क्वेश्चन कॉस्ट का हो गया, तीसरा टैक्स का। तो अगेन तीनों मेजर सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी। So question number 2C, what is the relevance of residential status as per the Indian Income Tax Act 1961? Discuss in detail how the residential status of an individual is determined for income tax purpose. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी हमने देखा सब विद इन दी सिलेबस है, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3A, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं कॉस्ट का क्वेश्चन है, प्रोसेस अकाउंट, तो बहुत ही इजी एक तरीके से अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड बाय एक्स लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए कई बार ना आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो सीधे क्लोजिंग स्टॉक एंड कैरी टू द ओपनिंग स्टॉक और अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की डिमांड पे हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि कई बार एग्जामिनर ट्विस्ट लेके आ जाता है। ठीक है, तो हमें बस डिटेल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपका कॉस्ट का सब्जेक्ट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके अंदर इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3B अगेन न्यूमेरिकल, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2A एंड B दोनों न्यूमेरिकल थे और 3A एंड B भी आपके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन था हमारा कॉस्ट का था, दूसरा हमारा इनकम टैक्स का है। ठीक है, मिस्टर ए रेसिडेंट ऑफ चेन्नई ओन्स 2 हाउसेज एंड द पर्टिकुलर ऑफ विच आर एस अंडर, तो भाई इन्होंने हाउस 1 एंड हाउस 2 लिया हुआ है, जिसमें से एक इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, दूसरा इन्होंने रेंट आउट किया है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो अब कई बार आपके मन में क्वेश्चन आते हैं भाई मैं कौन से असेसमेंट ईयर को प्रिपेयर करूं, या इनकम टैक्स में चेंजेस आ जाते हैं, मैं तो 1-2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उस केस में क्या करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सबसे पहले हमने देखा 2023 में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर क्या आया है, आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट 2023 में बैठे हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 आया है, यानी प्रीवियस ईयर 2021-2022 आया है। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट 2023 में बैठ रहे हैं उनके लिए कौन सा असेसमेंट है 22-23, यानी जो 2024 में अगर बैठ रहे हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आएगा असेसमेंट या 2023-2024। ठीक, अब अगर आप 1-2 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे हो तब क्या करना है, इनकम टैक्स में तो कई बार चेंजेस आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते, तो हमें क्या करना चाहिए, डोंट वरी, यू जस्ट स्टे कनेक्टेड। इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस होगा, जो चेंजेस होते हैं वो नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर कोई रिवाइज न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा तो हम उसे प्लेटफॉर्म पे कवर अप कराएंगे, अदरवाइज कोई न्यूज़ अपडेट होगा वी विल कवर हियर ओनली। सो नॉट टू वरी अबाउट द चेंजेस या अपडेट। आपको प्रिपरेशन इस वजह से डिले नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली 1-1.5 साल या 2 साल पहले आप स्टार्ट कर रहे हो, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो इस वजह से कि इनकम टैक्स में चेंजेस आ रहे हैं आप प्रिपरेशन डिले नहीं करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3C, तो हमने देखा 2C भी थ्योरी था और 3C भी थ्योरी है। ठीक है, क्या है, एन ऑडिट इज नॉट एसेंशियली एन इन्वेस्टिगेशन, वाई, एक्सप्लेन द जर्नल प्रोसीजर फॉलोड इन द इन्वेस्टिगेशन। सो भाई इन्वेस्टिगेशन आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि इन्वेस्टिगेशन एज पर कंपनीज एक्ट भी जो है क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उसको आपको डिफरेंस ऑडिट से नहीं पता है तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। तो ऑडिट का ये हमारा क्वेश्चन है और क्रिएटिविटी चेक कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट विद इन दी सिलेबस है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो विद इन दी सिलेबस ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, तो अगेन ये न्यूमेरिकल हमें देखने को मिला है, अकाउंट्स का न्यूमेरिकल है, इशू ऑफ शेयर्स का। ठीक है, फॉरफीचर एंड री इशू, राइट। तो फॉरफीचर एंड री इशू का हमारा ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, A Limited invited applications for 1,60,000 shares of ₹10 each at a premium of 2.50 per share payable as follows। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है, मैं इस क्वेश्चन को रीड नहीं करूँगी, अननेसेसरी हमारा वीडियो लेंदी हो जाएगा। जब हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड एंड इवन ऑन एवरी फैक्ट। ठीक है, तो अकाउंट्स का न्यूमेरिकल है, 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर एंड री इशू के चैप्टर से हैं, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपको लिंक करने में हेल्पफुल होगा आई बिलीव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B, हमें 2A एंड 2B, 3A एंड 3B न्यूमेरिकल देखने को मिले और C पार्ट दोनों के थ्योरी थे। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में केवल सेक्शन A न्यूमेरिकल है लेकिन B और C आपका थ्योरी है। लेकिन ये थ्योरी कैसा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, discuss the concept of a division as an independent profit center।
कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न मैथड विद द रेसिडुअल इनकम मैथड ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द डिवीजन। कॉस्ट का ये हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4C भी हमारा थ्योरी है, 15 मार्क्स का है, लेकिन इन्होंने वेटेज डिवाइड करा है यहाँ पे 9+6, यानी पार्ट 1 को इन्होंने 9 वेटेज दिया है और पार्ट 2 को 6 मार्क्स का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। ग्रेजुटी आपको एक्सप्लेन करना है तो ऑब्वियसली मेरा आपको सजेशन यही होगा कि आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। कैसे करेंगे? जब हम आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको कंप्लीट इसका टॉपिक को डिटेल में डिस्कस, किसी भी आंसर को डिस्कस करेंगे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इन्होंने साफ बोल दिया भाई मुझे रिटायरमेंट के टाइम का ही बताना, लेकिन ग्रेचुटी में ऐसे नहीं बोला। ग्रेचुटी में सिर्फ ये बोल दिया बताओ ग्रेचुटी के बारे में, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिल रहा है तो आपको दोनों कवर अप करना है वहाँ पे, ठीक है। ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आपको ध्यान देना है। सो ये था हमारा सेक्शन ए, यानी रिलेटेड टू 4 सब्जेक्ट्स। कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वो फुल्ली थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी पार्ट न्यूमेरिकल है, सी पार्ट हमारा थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अगेन ए एंड बी हमारा न्यूमेरिकल था, सी पार्ट थ्योरी था। तो यानी अब तक 4 न्यूमेरिकल आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स प्लस सी पार्ट ऑफ 2 एंड 3, यानी 7 न्यूमेरिकल्स थ्योरी आ चुकी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ए इज़ द न्यूमेरिकल एंड बी एंड सी इज़ द थ्योरी। तो क्या हम न्यूमेरिकल से भाग सकते हैं? नहीं, आपको एक ना एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फेस करना ही पड़ेगा। सेक्शन ए में आपने ये देख लिया है। हो सकता है कई बार आप 2 पार्ट में भी न्यूमेरिकल में फंस जाओ, तो कई बार स्टूडेंट ये पूछ रहे क्या आप न्यूमेरिकल से भाग सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया कि नहीं, आप न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते हो। आपको एक ना एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिलेगा ज़रूर, ठीक है। बट हाँ, मोर ओवर विद द वेटेज एज कम्पेयर टू द थ्योरी, आपको थ्योरी जो है ज़्यादा ओपन ऑप्शंस मिलेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, वहीं पे थ्योरी में अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी मार्किंग ही स्टार्ट होगी आपकी 12 मार्क्स से या 11 मार्क्स से, तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं वहाँ पे रिड्यूस स्टेज पे वर्क कर रहे होगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी मैंने आंसर किया। सेक्शन बी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंक्लूड करेंगे सेक्शन ए के बारे में। जो हमारे स्टूडेंट अपीयर किए 2023 में, उनका क्या व्यूज़ थे, उनके क्या ओपिनियंस थे, कि लास्ट टाइम से क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, एज़ कम्पेयर टू द पॉइंट था। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था इस बार के पेपर में कि न्यूज़ के कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर अप नहीं किए गए हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर जो एक्सपेक्टेड था वो सेम ही असेसमेंट ईयर आपसे इनकम टैक्स में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी ऑफ आंसर राइटिंग देखी गई है, तो आपको क्रिएटिविटी वहाँ पे प्रेजेंट करनी है, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं तो हर स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट वो आंसर आते होंगे, लेकिन आप कितना बेस्ट लिख रहे हो उस मार्क्स को फैच करने के लिए वो आप पे निर्भर है। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल में आपको एक ओपन ऑप्शन मिलता है चॉइसेस का, आप उसे जो है अपने बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने मैक्सिमम न्यूमेरिकल किए तो आपको उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं और आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी यानी एफ एम एन एफ आई के बारे में बढ़ने से पहले ये बताऊंगी, ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक्ड है, यस। तो कभी भी इसको छोड़ने का मत सोचो ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप जीएस पेपर 3 पूरा कवर अप कर ही रहे हो, तो उसको बस रिवाइज करना होगा आपको कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 के टाइम में, टू द एक्सटेंट ऑफ योर पेपर 1 का सिलेबस। तो एफ आई छोड़ने का तो नहीं सोच सकते। रही बात एफ एम की, तो छोड़ने के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, और आप क्या मेरे से ओपिनियन एक्सपेक्ट करते हो, आप प्लीज़ डू लेट मी नो कि अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ना है या चैप्टर छोड़ना है तो क्या ऐसा करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, डू लेट मी नो। फिर मैं इसके बारे में भी डिटेल में आपको एक्सप्रेस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंपलसरी है, आपको रिकॉल करा दूँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 5 सब पार्ट्स हैं, 150 वर्ड्स ईच में हमें इसे एक्सप्लेन करना है। Question number 1, 5A. Explain the financial indifference point in the context of EBIT EPS analysis by giving suitable example. तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। जनरली हमारे व्यू पॉइंट में क्या होता है, EBIT EPS एनालिसिस, और हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कवर अप कर जाते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर आपको ध्यान हो तो।
लेकिन यहाँ पे EBIT PANLS के बारे में नहीं पूछा है, उसके अंदर जो फाइनेंशियल इनडिफरेंस पॉइंट है उस पर जोर दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5B, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्कस द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपने एक बार भी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करी है, आपने वीडियो सेशन को सुना है, उसे समझा है, आप बिना रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 5B कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI, सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5C, ये भी आपका डायरेक्ट है, आपके टू द पॉइंट है, टू द सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 5D, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, डिस्कस द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्रेस, FI का क्वेश्चन है। तो आपने पहले दो क्वेश्चन देखे, ये आपके FM के थे, C एंड D आपका FI का है, और E आपका FM का है, व्हाट इज मर्जर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मर्जर। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। अब ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आता होगा, आपको आउटस्टैंडिंग कैसे होना है हम वो देखेंगे आंसर राइटिंग के थ्रू, ठीक है, कि आप कैसे आउटस्टैंडिंग हो सकते हो, ठीक है। स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 6A, क्योंकि मैं अननेसेसरी डिटेल डिस्कशन में नहीं जाके वीडियो को बढ़ाऊंगी नहीं, हम डायरेक्ट स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड, एक बार देख लेते हैं। Moon Limited want to replace its labor-intensive manufacturing facility, and the company is evaluating a project to install a machining system. It is estimated that the system will result in annual saving of 13,50,000 in wages, 4,50,000 in supervisory cost, 1,50,000 in material loss during production, 120 in inventory, and 90,000 in other operating cost. The machining system is likely to cost 22,50,000 and will require an installation cost of 1,50,000. It is useful life is for 5 years. To operate the system, the company requires the service of 2 trained operator at an annual salary of 4,50,000 each. Its annual repair and maintenance cost is 1,20,000, assuming corporate tax is 30%. Required rate of return is 12%. Suggest Moon Limited what is should we accept the project or not. So ये आपका कैपिटल बजटिंग है, और यहाँ पे क्रिएटिविटी चेक की गई है आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑफ द क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, इसे हम एडवांस वर्जन ऑफ द क्वेश्चन में पुट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि आपकी कैपिटल बजटिंग की नॉलेज को इन्होंने डिसीजन मेकिंग में चेक किया गया है। FM का ये हमारा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 6B हम देखते हैं, 6B भी न्यूमेरिकल है, और किस टॉपिक से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड एंगेज्ड इन लार्ज स्केल customer retailing. You are required to forecast its working capital requirement with 1 year constitutes 52 weeks. So working capital का ये हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं 15 मार्क्स का। So 6A and 6B अगेन आपका न्यूमेरिकल है, और 6C हमारा थ्योरी है FI का। What is a mutual fund? Discuss the type of mutual fund prevalent in India. ये आप जैसे सब एस्पिरेंट को आता होगा, सब एस्पिरेंट ने कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप कैसे आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं हम आंसर राइटिंग में डिस्कस करेंगे। 7A हमारा न्यूमेरिकल है अगेन, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें गिवन है, और रेशियो का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने देखा सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर का वेटेज हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इस बार इस तरीके से पूछा गया हो और लास्ट ईयर किसी और तरीके से, और यूपीएससी आपको रिकॉल करा दूँ फुल ऑफ सरप्राइजेस है, तो इसको प्रिडिक्ट करके नहीं जाएंगे, तभी आप सेफ रह सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ना ऑफिसर बनने वाले हैं, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इट्स वेरी चैलेंजिंग, और मेंस अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप सिर्फ प्रिजम्पशन के बेसिस में मेंस को मिस कर दे, ये गलती आप डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हमें बहुत ही सेफ प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस का ये हमारा न्यूमेरिकल है 20 मार्क्स का। 7A हमने देखा, 7B हमारा थ्योरी है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंस नहीं पूछा है केवल फंड फ्लो स्टेटमेंट का, मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट में पूछा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट में ही इसे आंसर करना है। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, 15 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है 7B। 7C हमारा व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, डिस्कस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लिमिट। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इस पर आप ले लैंग्वेज में स्टोरी भी लिख के आ सकते हो, और टू द पॉइंट क्रिएटिव आंसर विद एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। 8th पार्ट में आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6A एंड बी हमारा न्यूमेरिकल था, 6C थ्योरी था, लेकिन 7A न्यूमेरिकल था, 7B एंड C थ्योरी था। 8A आते हैं, 8A भी हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है, और 8A हमारा जो है किससे रिलेटेड है देख लेते हैं क्विकली। एक्स लिमिटेड हैज़ अ प्रेजेंट एनुअल सेल अमाउंटिंग 60 लाख एट ₹24 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। Credit period of 1 month is proposed to be extended to either 2 or 3 months, whichever is appear to be more profitable. And credit policy given है. Company requires a pre-tax return on investment at least of 20%. What will be the most rewarding credit policy? So एक तरीके से ये वर्किंग कैपिटल की नॉलेज इन्वॉल्व है विद डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि कौन सी क्रेडिट पॉलिसी जो है कंपनी के लिए जो है वायबल होगी, ठीक है। तो 8A हमारा न्यूमेरिकल है एंड अगेन 8B न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है, वॉल्टर मॉडल के बेसिस पे। अगर आपने द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक रेफर की होगी तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन गिवन है। आपकी वीडियो क्लास में भी इसे कवर अप कराया गया है, टू द पॉइंट है, हम इसे डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ठीक है। वॉल्टर मॉडल आपका ये डिविडेंड का जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। 8C इज द लास्ट थ्योरी क्वेश्चन है FI का। व्हाट इज वेंचर कैपिटल? Explain the function of venture capital for the development of economy and also discuss the various stages of venture capital financing. 15 मार्क्स के क्वेश्चन, लेकिन 3 पार्ट के क्वेश्चंस पूछे गए, यानी 5-5 मार्क्स इक्वल वेटेज गिवन है तीनों सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन को। कंक्लूड करें तो 6 क्वेश्चन नंबर 5 तो फुल आपका थ्योरी था, क्वेश्चन नंबर 6A एंड B न्यूमेरिकल है, C आपकी थ्योरी है। 7 में A आपका न्यूमेरिकल है बट B एंड C आपकी थ्योरी थी। 8 में आपका A न्यूमेरिकल है, B न्यूमेरिकल एंड C थ्योरी है। तो अगर आप सोचेंगे कि क्या हम न्यूमेरिकल से भाग सकते हैं, तो नहीं, आपको एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दो, तो आप वैसे ही रेस में पीछे हो जाओगे। तो न्यूमेरिकल आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं, तो नहीं, आंसर इज़ नो। एंड रेस्ट थ्योरी का वेटेज ज़्यादा है। अगेन मेरा व्यू पॉइंट यही रहेगा कि देखिए न्यूमेरिकल में आपको फुल मार्क्स मिलना पॉसिबल है, बट थ्योरी में एक बेस लेवल से स्टार्ट होता है मार्किंग, कोई फिक्स रूल क्राइटेरिया नहीं है, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो दिस वाज द कंक्लूजन एंड एनालिसिस। अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने कवर अप नहीं किया है, डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस अपने साथ घर नहीं लेके जाएंगे, उसे पूछ करके क्लियर करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूं, अगर जो स्टूडेंट है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। और आई विल लिंक विद हमारा बुक ऑल्सो, जो हमारे बुक्स में कवर है, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसे बुक्स के थ्रू भी लिंक करेंगे। और बुक्स में अगर कुछ रिवीजन कर रहे हैं हम आने वाले टाइम में, हमारा जो न्यू एडिशन है, तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं लास्ट 2 ईयर्स के, उनको भी आई ट्राई कि आप सबको ईमेल चला जाए जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, या आप व्हाट्सएप के चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे भी हम चेंजेस आपको एक बार शेयर कर देंगे बुक से रिलेवेंट, कि हम कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस कर रहे हैं, ताकि आपकी बुक आपके लिए पुरानी नहीं हो, वो अपडेटेड हो, अपग्रेडेड हो, ठीक है। और आप उस बुक को कॉन्फिडेंटली रेफर कर सके कि येस यू आर ऑन द राइट प्लेस, ठीक है। सो आई होप दिस एनालिसिस हेल्प यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी व्यूज एंड ओपिनियंस, डू शेयर इन अ कमेंट सेक्शन। हम उसको एनालिसिस को रेफर करेंगे और पेपर 2 के एनालिसिस को एक सेपरेट सेशन के साथ लेकर के आएंगे, एंड देन वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, टेक द मैक्सिमम बेनिफिट and do work hard every single day, ठीक है। See you in the next session. Bye bye and Jai Hind.